Hello students, in today's video we will revise chapter controlling as per the latest syllabus 2021-22. सबसे पहले we will study the meaning of controlling. Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. That means whatever activities are being undertaken in an organization, they are being performed as per the plans के हिसाब से ही हमने अपनी एक्टिविटीज को अंडरटेक किया है. Controlling function of management comes to the rescue of manager. How it is helping a manager? It is not only helping in keeping the track of progress of activities कि भाई activities की progress क्या, उनका status क्या है, but वो ये भी confirm करता है that they are as per the standards which are set in advance so that organizational goals are achieved. अगर हम फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो एनसीईआरटी में हमें सब पॉइंट्स नहीं गिवन है, बट यस व्हेन इट कम्स इन पेपर यू शुड डेफिनेटली मेक सब हेडिंग्स. सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास फीचर्स में आ रहा है, इट इज अ परवेसिव फंक्शन. परवेसिव फंक्शन मींस managers at all levels of management, whether it is top level, middle level or lower level, need to perform controlling to keep control over the activities in their areas. Moreover, controlling is a much required in educational institution, military, hospitals and clubs. यानी मैनेजमेंट प्रोसेस में कंट्रोलिंग की नीड सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. Even other institutions also require controlling as a process. So it is all pervasive. Yes, controlling is also goal oriented. Why? अभी definition से ये बात हम देख सकते हैं कि controlling is ensuring that organizational resources are being used effectively and efficiently. And for why? What purpose we are using it? So as to achieve predetermined goals. Next is, it is a function that brings back the management cycle to the planning function. See, it is not the last function of management. जबकि अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, तो जब हम नेक्स्ट ईयर की प्लान सेट करेंगे तो जो हमारे प्रीवियस ईयर की जो भी हमारे डेविएशंस रही हैं, that could be a lesson when we are making new plans in future. That means controlling is not the last function. जो भी एनालिसिस हमने कंट्रोलिंग में किया है प्रीवियस ईयर के, इट कुड गिव अस some kind of advice, some kind of direction, some kind of help we can say to frame plans in future. This process help in formulation of future plan. Controlling हमें future plans बनाने में help कर रहा है because the problems that we have identified and the solution that we have got in the previous year can help us to frame our future plans. Thus, controlling only complete one cycle of management process and it helps in improving the coming cycle, that is the next planning cycle of an organization. Now coming to the importance of controlling. सबसे पहले we will write this line that controlling is an indispensable function of management. Without control the best of plans can go awry. जैसे आप सभी का प्लान है अभी अच्छे स्कोर लेकर आना और डीयू जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना या जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, but it is a mere plan unless and until it will not be controlled. जब तक उस पर चेक नहीं किया जाएगा that whether you are working as per your aim, जो आपने अचीव करना है और नॉट, इट इज वेस्ट. मेकिंग ओनली अ प्लान इज वेस्ट अनलेस एंड अनटिल वी डोंट हैव प्रॉपर कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉर इट. सो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इट मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग टू द लाइट द डेविएशंस इफ एनी. अगर कोई कमी पेश की रह गई है, कोई हमारे पास कोई डेविएशंस है, there are certain things that we are not able to perform, then it is just observing the progress of the people who are working in the organization, that how diligently they are working to achieve these goals, and if there is a way to overcome these deviations, then that means it is indicating corrective actions. It does guide the organization and keep it on right track so that organizational goals might be achieved.
यानी अगर आपको अपनी गलतियां टाइम रहते पता चल जाए और आप उनके लिए करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, that means you can bring your organization back to the right track. So it is helping you to achieve organizational goals, judging accuracy of standards. Efficient controlling system keep a careful check on the changes. ये changes के ऊपर भी नजर रखता है that is taking place in the organization or the external environment. Now it help us to review and revise the standard in the light of such changes. तो judging of accuracy of standard आए, आप कुछ भी नहीं लिख देंगे. You will write the key lines that whenever changes are taking place within the organization or outside the organization, that means the business environment, the environment which is beyond the control of an organization, अगर वहां पर चेंजेस आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम अपने स्टैंडर्ड्स, जो भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसे दोबारा से रिव्यू और रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग नाम से पता चल रहा है दैट यू आर कीपिंग अ वॉच, यू आर कीपिंग अ लुक. By exercising control, managers seek to reduce wastage and spoilage of resources. Resources का wastage जो है वो minimize किया जा सकता है. Each activity is performed in accordance with predetermined standards and norm. और अगर हमें पहले से ही अपना aim, अपना लक्ष्य पता होगा, then we can make the use of our resources in the most effective and efficient manner. Effective means आप अपने goals को timely achieve करेंगे. Efficient means आप minimum cost, मिनिमम वेस्टेज के साथ अपने गोल्स को अचीव करोगे. नाउ कंट्रोलिंग आल्सो इंप्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन बिकॉज एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस. उन्हें पहले से ही पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट स्टैंडर्ड दे हैव टू अचीव. और अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को इन परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी अचीव करते हैं, दे विल बी अप्रेज्ड. सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन that employees know well in advance that what is being expected by them to do, and if they are doing it and they are achieving the standards, then they will be appraised. So when they are being appraised, it is a way of motivating the employees. And पहले से पता है क्या करना है और अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो इन रिवॉर्ड्स के लिए एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा जो है वो इनिशिएटिव लेते रहते हैं. दे आर ऑलवेज बीइंग मोटिवेटेड. नेक्स्ट, ensuring order and discipline. कंट्रोल मिनिमाइज करता है dishonest behavior on the part of employees. How? By keeping a close check on their activities. उन पर नजर बनाकर जब रखेंगे तो उनका जो dishonest behavior है वो मिनिमाइज हो जाएगा. I hope all these points are clear. Moving to our next point, 6 point, facilitating coordination in action. It provides direction to all activities and efforts for achieving organizational goal. देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन में भी हेल्प करता है कंट्रोलिंग. ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड. सबके पास कुछ ना कुछ गोल्स हैं, एम्स हैं व्हिच दे हैव टू अचीव एंड दे शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर. और अगर ये वेल कोऑर्डिनेटेड होंगे, देखो हर डिपार्टमेंट के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो हमारा एक ही है. तो जो हमारे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या हम गोल्स कह सकते हैं कि हम अचीव कर सकते हैं. आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बार फटाफट से रिट्रीएट करते हैं पॉइंट जो हमने पढ़े हैं एज द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल एज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. अगर हम फीचर्स की बात करें तो बेटा हमने क्या फीचर्स में पढ़ा है. फीचर्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा, इट इज ऑल परवेसिव. दैट मींस इट इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स, वेदर इट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और वेदर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन. हमें हमेशा कंट्रोलिंग की नीड रहती है, तो इट इज ऑल परवेसिव. देन इट इज गोल ओरिएंटेड. ऑब्वियसली कंट्रोल की नीड ही कब है, जब आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं ऑलरेडी, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अचीव. सो यस, इट इज गोल ओरिएंटेड. इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एंड आल्सो it should not be understood as the last function of management. It brings back management cycle.
ये मैनेजमेंट साइकिल को वापस लेके आता है। दैट मीन्स जो आपने प्रीवियस ईयर में डेविएशंस किए हैं वो आपको फ्यूचर प्लान्स और अच्छे से रिवाइज और रिव्यू करके बनाने में हेल्प करते हैं। So these are the features of controlling. Now moving to the importance, हमारे पास सबसे पहली importance क्या आई? It helps in achieving organizational goals, कि हमें organizational goals achieve करने में help करते हैं controlling. Then we came, it helps in judging accuracy of standard. इस point में बेटा आपको मैंने क्या बताया था? इस point में मैंने आपको बताया था अगर external environment में या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज और रिव्यू करते रहें। देन हमारे पास पॉइंट आया मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और ये कैसे हेल्प करेगा? अगर आप एक गुड कंट्रोल सिस्टम रखेंगे तो आप रिसोर्सेज की वेस्टेज और स्पॉइलेज को रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेल इन एडवांस what standards have to be achieved and there are already set norms to achieve them. And the next point is it helps in improving employees motivation. Employees motivation kaise improve hoga? As employees know well in advance what is being expected by them, and if they are performing the job as per the standard set, they will be appraised, so they are somewhere being motivated to give better performance. देन हमारे पास पॉइंट आया इट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर आप क्लोज चेक रखोगे तो यू कैन समवेयर मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया? फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन among the various departments. Every department have their own standards, and if everybody is achieving those standards by keeping a close check on them and when they're well coordinated, somewhere it is ensuring achievement of overall organizational objectives. I hope all these points are clear. Now moving next, that is the step of controlling. तो सबसे पहला step क्या है? आप standard set करेंगे, then आप measurement करेंगे actual performance की, then comparison of actual performance with the set standards, then analyzing deviations, आप गलतियों का पता लगाएंगे। गलतियों का पता लगाने के बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दैट मींस स्टैंडर्ड्स क्या है? ये वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे अपने फाइनल एग्जाम में 100 मार्क्स लाने हैं, सो दिस इज अ सेट स्टैंडर्ड। अब जो भी टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो वो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा कि बेटा आपने कहा था आपको तो 100 मार्क्स लाने, स्टैंडर्ड हैज ऑलरेडी बीन सेट, नाउ एज पर दैट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड सर्व एज अ बेंचमार्क टुवर्ड व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू वर्क। ये वही बेंचमार्क है, ये वही मुद्दा हम कह सकते हैं, ये वही एजेंडा है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। नाउ स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में हो सकते हैं, पर आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि किसको मेजर करना ज्यादा इजी होगा। विल गेट द आंसर दैट measuring a quantitative standard is quite easy. Sometimes standard may also be set in qualitative terms, like improving goodwill and motivation level of employees are examples of qualitative standards. कि आपके employees अगर बहुत motivated है या आपकी कंपनी की अगर ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंप्रूव हो रही है, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ measuring the standards, measuring the performance, but these are qualitative standards. And then we have a manager should try to set standard in precise quantitative terms. So this is suggested that it should be in quantitative term because it becomes easier to make comparison. कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। तो बेटा आप लिखेंगे पहले स्टैंडर्ड क्या है, वो ये वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, ये वो बेंचमार्क है जो आपको स्ट्राइव करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, बट क्वालिटेटिव का एग्जांपल दे दो क्योंकि अगर है तो कौन से हो सकते हैं। वी हैव टेकन टू एग्जांपल इंप्रूविंग गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, बट it is suggested we should try as a manager that they should be in precise quantitative
terms, because then the comparison with actual performance becomes easier. It is important that standards should be flexible enough so that they can be modified whenever required. तो flexible भी होने चाहिए. So these are the key lines, keyword which is being expected by you, by the examiner to be written. और आप इनको इसी तरह से ब्रेकअप करके लाइंस जो है वो लिख सकते हैं एग्जाम में फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन. देन कम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां आपने जो भी काम किया उसको मेजर करेंगे. परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव वे, ऑब्जेक्टिव मैनर. अब आप अपनी देखो, अपनी जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है उसको मेजर करेंगे. नाउ व्हेन यू विल मेजर परफॉर्मेंस, यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग इट. ठीक है, बट यू शुड ट्राई व्हेन यू आर मेजरिंग परफॉर्मेंस, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट सेम यूनिट में होना चाहिए. It is generally believed that measurement should be done after task is completed. वैसे तो देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका जो फाइनल प्री बोर्ड एग्जाम है वो डिसाइड करता है कि भाई बच्चे ने कितना पूरा साल पढ़ा है, बट हम प्री बोर्ड तक का वेट नहीं करते हैं. We keep on taking small tests during the year also. So whenever possible, we should also measure the work during the performance. हमें लास्ट का वेट नहीं करना चाहिए कि एंड में जब टास्क कंप्लीट हो जाएगी तभी हम लोग उसको मेजर करेंगे. हम ड्यूरिंग द वर्क व्हेन इट इज बीइंग परफॉर्म्ड उसे साथ साथ चेक करते रहना चाहिए. नाउ देयर आर सेवरल टेक्निक फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस. जैसे पहला पर्सनल ऑब्जर्वेशन. If I talk about an organization where assembling tasks is being done, so each part which is being produced is being checked. Sample checking, jahan par the organization is very large, it is very tough to check each and every that product or piece there. Randomly we take one product and we check it. Performance report. Measurement of performance of an employee may require preparation of performance report by his superior. So this is the way आपकी भी रिपोर्ट कार्ड बनती है परफॉर्मेंस की, वैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन रही है. तो देखो टेक्निक्स क्या क्या आई है हमारे पास. पर्सनल ऑब्जर्वेशन आया, सैंपल चेकिंग आया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आया, और साथ ही में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है आपको कि कहाँ कैसे हम मेजर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को विद द हेल्प ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, when sample checking is being required, and what is performance report. तो आप ऐसे ही अगर अपने एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे, definitely you're going to get very good marks. Third step, comparing actual performance with set standard. Now you have already set objective in an organization. You will compare your actual performance with the set standard and you will try to reveal the result कि क्या आपने जो result expect किया था desired वो जो है वो achieve किया है या नहीं. Comparison easy हो जाता है when standards are set in quantitative terms. ये हमने पहले भी पढ़ा है. When it is in quantitative term तो हमारे लिए बहुत easy हो जाता है measure करना अपनी actual performance को भी और उसे compare करना set standards के साथ. Analyzing deviations. It is very much important to determine the acceptable range of deviation कि कितनी लिमिट तक हम deviations को accept कर सकते हैं. Also deviations in key areas of business need to be attended more urgently. जो key areas है अगर वहां पर कोई deviation आती है so they need immediate attention. इसमें हम सबसे पहले जो point पढ़ेंगे analyzing deviation में, that is critical points control, which states it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखना बहुत मुश्किल है. तो हम किस पर नजर रखेंगे, हमारा फोकस किस पर रहेगा, की रिजल्ट एरियाज पे रहेगा जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. if anything goes wrong at critical points तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है. इनसिग्निफिकेंट एरियाज में अगर डेविएशन हो भी जाती है कोई बात नहीं, दैट इज एक्सेप्टेबल. बट जहां एरियाज जो हैं दे नीड मोर फोकस, अगर वहां पर कोई डेविएशन आता है देन इट नीड अर्जेंट अटेंशन. फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ती, इट इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है in terms of wages. Whereas if I talk about increase of postal charges by 15%, हमें सबको पता है पोस्टल चार्जेस का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता. अगर ये 15% से बढ़ भी गया है तो इट इज एक्सेप्टेबल.
बट अगर लेबर कॉस्ट 5% से भी बढ़ जाती है, इट इज एन एरिया विच नीड अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसीलिए सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशन which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सेट किए क्राइटेरिया, जो अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिया था. अगर मान लो 2% तक का क्राइटेरिया है कि अगर मान लो डेविएशन आ भी जाता है तो इट इज नॉर्मल, इट इज ओके. बट इफ डेविएशन गो बियॉन्ड 2%, then it should be brought to the notice of the management or the organization on priority basis. After identifying the deviation that demand managerial attention, these deviation need to be analyzed for their cause. अब कारण क्या रहे कि ये deviation जो है beyond permissible limit गया है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है. It is necessary to identify the exact cause या causes, failing which an appropriate corrective action might not be possible. The deviation and their cause are then reported and corrective action taken at appropriate level. तो अगर आपको deviations पता लग जाती हैं, आपको causes पता लग जाते हैं, you will try to correct them, and this action has to be taken as soon as possible at appropriate level. Now next comes corrective action. आप जब आप करेक्टिव एक्शन है तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, द फाइनल स्टेप. नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशंस आर विद इन परमिसिबल लिमिट. एक्सेप्टेबल लिमिट्स में तो कोई नीड नहीं है करेक्टिव एक्शन की, बट अगर वो जो अपनी रेंज है उससे बाहर चला जाता है, देन इट रिक्वायर्स इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन. अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कॉज ऑफ डेविएशन एंड डिफेक्टिव मटेरियल. So what you will do, you will change the quality specification of material used. अगर मान लो डिफेक्टिव मशीनरी है, either you will repair the machine or you will replace it. मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, then you will go for technological upgradation, अपर मॉडल के लिए जाओगे. प्रोसेस ही डिफेक्टिव है तो आप प्रोसेस को मॉडिफाई करोगे. अगर फिजिकल वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है बिजनेस में, you will try to improve. So these are the causes of deviations, कि क्या कारण रहे कि डेविएशन आई, and these are the corrective actions to be taken. I hope all these points are clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Don't forget to like, share and comment.